राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज पूर्वोत्तर दौराનો 30રો दिन राष्ट्रपति आइजोल में मिजोरम विधानसभा सदस्य ने કર્યા संबोधित કે मिजोरम विधानसभा सु लोकतंत्र ने मिला है मजबूती। नवी दिल्ली में आज विशेष स्वच्छता कार्यक्रम 2-0 बाबत राखी जी प्रेस वार्ता केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कहा 231 अक्टूबर ताणी राखी जी विशेष स्वच्छता अभियान ने मिली घनी सफलता। राज्यपाल कलराज मिश्री आज नवा बन्या पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा सो शिष्टाचार भेट प्रदेश की कानून व्यवस्था माथे करी की बातचीत। प्रदेश भर में आज देव उठनी 11 रे मौके एक फेरू ब्यास शादारो सिलसिलो व्यो शुरू। जयपुरा गोविंद देवजी मिंदन में लागी भक्तानी भीड़ सरकार कारीसो बाल विवाह खातर लोगा में जगाई जा रही है जाग। आ प्रदेश में आज तो नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय तापमान में उतार चढ़ाव जारी। मौसम महकमा ने मुजब हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में वह सके है बूंदाबांदी। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिनारा पूर्वोत्तर दौरा वाला है। राष्ट्रपति आइजोल में मिजोरम विधानसभा सदस्य ने संबोधित कर्या। वे कहा कि मिजोरम विधानसभा सु लोकतंत्र ने मजबूती मिला है। इन साथ ही वे कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं सु मिजोरम ने फायदो मिलेला। Among you today in this land of Mijos, the state of Mizoram is blessed by Mother Nature, and so are its wonderful people. It is my pleasure to visit Mizoram for the first time as President, and I thank you for the warm welcome you have accorded me. India, as we say, is a celebration of diversity. The states of the northeastern region adds special richness to that variety. You are among those who receive the rising sun first and ahead of the rest of the Indians in that way. Dear friends, the Mizoram Legislative Assembly celebrated its Golden Jubilee in May this year. This has been a half century of deepening democracy and of working hard to meet people's expectations for development. The past and present members of this House have made their best efforts to give expression to people's voices. They have been true representatives of the citizens and have always kept the larger interests of the state while fulfilling their duty as lawmakers. Over the years, this House has evolved a model of debate, health discussion, and mutual respect as an effective instrument in finding solutions to people's problems. I am happy to learn that the Mizoram Assembly has played a pioneer role in going digital by adopting NEVA. My congratulations to you all. In Mizoram, women are an empowered lot in every sphere of life, be it sports, culture, and business. I am keen to see their increased representation in public life, particularly among lawmakers like you in the state. नवी दिल्ली में आज विशेष स्वच्छता कार्यक्रम 2-0 बाबत एक खबरनवीसारो सम्मेलन राखी जो बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कहा कि 231 अक्टूबर ताणी राखी जा विशेष स्वच्छता अभियान ने सफलता मिली है। इन तहत 16 केंद्रीय मंत्रालय भागीदारी निभाया है। वे बताया कि दौरान सगला महकमा कानीसू राखी जा जागरूकता कार्यक्रम के कारण लोगों में स्वच्छता खातर नजरियो बदलियो है। वे बताया कि रेलवे कानीसू ई ऑफिस के तहत काम शुरू करियो गयो है। Nearly 1 lakh locations. Of course, the figure is 99,000 something.
which is almost 10 lakh, and as many as 300 best practices. I was only, when I was going through the presentations, I think next time what we can do is, because we are learning after each campaign, we could have before and after pictures also. So that like once now the gallery has been created, what it appeared to be before that space, before this came up. And the restaurant, what it was, what the space looked like before this came up. So that is one thing. So as I said, even last time, each time it's also a learning experience for all of us. And virtually now we are at the third level. The first level, of course, in 2014 was dedicated more to the cleaning of our spaces and building up of toilets, etc. The second level, when we graduated in 2021, it also involved the clearing of files, clearing of pending correspondence, etc. And now this time we've gone beyond that, how to also evolve some best practices out of that, and how best to use that space, and also how to deal with the online clearance, because earlier on we were only dealing with the physical files. But the online working in the government departments has also come of age, so we have got into that too. And that is one reason why somebody was telling me that the Swachhata campaign this time, possibly, the media friends would be able to suggest us better, has not created the kind of buzz that it created last year. I think that's because much of the media friends as much as we are getting used to what we are doing. So last year it created buzz because nobody believed that we could make money out of this. So after the first few, at the end of 1 week, when I was told that they had made 12 lakh crore, so I also was not very, sure about it. Then I sat down with Mr. Srinivas, we actually realized, and then we got greedy. So every week we were saying, at the end of it, we ended up with 62 crore. And media also found it something fanciful, like a man biting a dog. So now that's become a habit, so you don't find it very buzzful. I'm also saying so because we would request you to give it the same kind of wider coverage as was last time. રાજ્યના સગળા વિધાનસભા ક્ષેત્રની ફોટોયુક્ત મતદાતા સૂચિને ફેરુ જાંચા જવાનો कार्यक्रम घोषित કર્યો ગયો है। जयपुर में निर्वाचन महकमा कानीसू राखीजा खबरनवीसा सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि पहली बार आयोग कानीसू 17 बरस 32 उमरवाळा नौजवानों ने मतदाता सूची में जोड़वा खातर अगाऊ फार्म भरवाया जा रहा है। संक्षिप्त जो पुनरीक्षण कार्यक्रम होता है, विशेष जो हम लोग कैंप लगाते हैं मतदाताओं को जोड़ने का, जो 1 महीने का कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग मतदाताओं को, युवा मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं। पहली बार आयोग ने 17 प्लस के जो हमारे साथी हैं, युवा साथी हैं, उनका भी हम लोग इसमें एडवांस फॉर्म लेंगे, जो कि वो अपना 9 तारीख से फॉर्म भर सकेगा हमारे VHA ऐप पे या BLO से संपर्क करके या NVSP पोर्टल पे जाकर। तो ये एक नया आयोग द्वारा किया गया कार्य है, जिसमें कि हमारे जो साथी जो वोटर बनने जा रहे हैं उनको पहले से ही फॉर्म भरवाया जा रहा है। 17 प्लस जिसको हम कहेंगे, जो 17 साल का हो गया है वो अपना फॉर्म भर सकेगा। कुछ हम लोगों ने पोलिंग स्टेशन का रैशनलाइजेशन भी किया था इस बार, 310 नए बूथ भी गठित किए हैं। साथ में कुछ बूथों के नाम चेंज हो गए थे, स्कूलों के या जीर्ण शीर्ण हो गए थे, स्कूल ही बंद हो गए, तो उनको भी हमने व्यवस्थीकरण करके, रैशनलाइजेशन करके नए बूथ बनाए, जिससे कि मतदाताओं को 2 किलोमीटर से दूर भी आना पड़ रहा था, उनको भी सुविधा दी गई है। विशेष कैंप स्कूलों में, कॉलेजेस में भी लगाए जाएंगे, जहां हमारे युवा साथी बहुत संख्या में पढ़ रहे हैं। VHA की जानकारी, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, जो बहुत सिंपल ऐप है, उसके द्वारा आवेदन कर सकते हैं। और ये जो
राज्यपाल कलराज मिश्र आज नुआ बण्या पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा से शिष्टाचार भेंट कर्या। इन दौरान राज्यपाल और पुलिस महानिदेशक रे बीचे प्रदेश की कानून व्यवस्था ने लेकर बातचीत करेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली राज्य सरकार की नवजीवन योजना के तहत अलवर जिला रमाए कौशल प्रशिक्षण का पहला बैच की शुरुआत कर्या। इनमें शामिल भी लुगाया ने व मुफ्त टूल किट बांटिया। इन मौके मंत्री कहा कि पिरवारा ने शराब मुक्त कर कौशल प्रशिक्षण देर समाज ने मुख्य धारा में लियाबा खातर नवजीवन योजना चलाई जा रही है। इन योजना में शामिल पिरवारा ने पेंशन, पालनहार, कन्यादान समेत कई दूसरी योजनाओं से भी जोड़ो जावेला। देवउठनी 11 मौके आज प्रदेश भर में मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इन मौके लोग मिंदरा में दर्शना खातर आ रहा है। जयपुरा गोविंद देव जी मंदिर में आज सुबह सुही भक्तारी भीड़ लागोड़ी है। आज के दिन कहते हैं कि जो 11 का व्रत पूरे साल नहीं रखता, आज रखेगा तो वैकुंठ धाम को जाएगा। तो राजस्थान में वैसे भी संस्कृति, रीति रिवाज, भगवान की बहुत आस्था है। तो आज का दिन ऐसा विशेष है कि पूरे साल का एक ही दिन सबको पुण्य मिलेगा। इसलिए पूरे लोग श्रद्धा भाव से हमारे कुल देव राधा गोविंद जी के मंदिर में भक्ति के लिए, साधना के लिए आए हुए हैं। हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पहले तो हम इसको जानते नहीं थे, लेकिन जब से हम जाने हैं, जब से हम गोविंद से जुड़े हैं, तब से हम रोज डेली सुबह 4 बजे मंगला करते हैं, उसके बाद मंदिर जाते हैं, अपनी नित्य काम करते हैं। और ठाकुर जी की इतनी असीम कृपा है कि हमारे सारे काम बिगड़े काम बनते जाते हैं। आज तो सबसे बड़ी 11 है। आज का तो बहुत बड़ा पर्व है देवउठनी 11 से। आज इनकी शादी होगी, तुलसी जी के साथ शादी होगी आज इनकी। हम तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। सुबह 4 बजे भी आए थे, अब फिर आए हैं। आज का बहुत पावन उत्सव है। आज एकादशी है और देवउठनी 11 भी है। आज के दिन से बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि खाटू श्याम जी के भी श्री श्याम बाबा का भी जन्मदिन है। इसको बहुत त्योहार की जैसे और बहुत उल्लास से माना जाता है। घर में हम मानते भी है और पूछते भी है, फूलों से भी पूछते हैं और देव को उठाते हैं। और तुलसी विवाह भी होगा आज, तुलसी की पूजा भी होगी। सुबह 4 बजे उठ के नहाते धोते हैं, भगवान के यहाँ दर्शन करते हैं। बड़े धूमधाम से करते हैं, श्रद्धापूर्वक करते हैं और खूब दान पुण्य ऐसे जैसे कुछ चढ़ाना हो, साड़ी वाड़ी सब महिलाएं मिलकर हम एक साथ करते हैं। और तुलसी विवाह के लिए पाटा मानते हैं। घर के ही परिवार लोग आधे तुलसी जी की तरफ से, आधे सालग्राम जी की तरफ से हो जाते हैं। पाटा मानते हैं, उस पर उल्टी थाली रखते हैं, क्योंकि ऐसे कहते हैं शास्त्रों में कि 4 महीने भगवान विश्राम करके उठे हैं। तो पाटा मानते हैं, थाली बजाते हैं, तुलसी जी को अच्छे से सजाते हैं, गहने वगैरह पहनाते हैं, बढ़िया ओढ़ना साड़ी पहनाते हैं। और उसके बाद में सालग्राम जी को कोई भी पुरुष महिला लेकर के और तुलसी जी के मंदिर में आते हैं। मंदिर में आ जाओ, घर वाले घर में भी करते हैं। सब लोग मंदिर में नहीं आ सकते तो घर में ही परिक्रमा साथ करते हैं और अच्छे व्यंजन बनाते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा महत्व है, सभी वैष्णव के लिए बहुत अच्छा है। सनातन धर्म के लिए सब लोग 11 करनी चाहिए, सबको मानना चाहिए। सभी लोग व्रत करते हैं जो इनसे आस्था रखते हैं ठाकुर जी से, और सब लोग जो अपनी तरफ से भगवान को स्मरण करते हैं। प्रदेश भर में आज देवउठनी 11 सो एक फिर ब्यास यादा रोज सिलसिलो शुरू हो गयो है। आज पहलो सावो है। इनमें हजारों संख्या में ब्यावेला। यह सिलसिलो 14 दिसंबर ताणी चालेला। बाल विवाह रोकथाम खातर राज्य में जिला प्रशासन कार्यसु कई जुगत करी जा रही है। राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल प्रदेश रा सगला माँ बापा सो नाबालिग डाबरा ब्याह दी करवाने साथ है बाल विवाह में लोगा सो शामिल ली व्यापारी भी अपील करया है। दिन, पुण्य दिन मेरा प्रदेश वासियों में सभी अभिभावकों से, परिवारजनों से कर भर निवेदन रहेगा कि कृपया कर नाबालिग बच्चों के बाल विवाह आयोजित ना करें और देश को खुशहाल देश और हमारे बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने की पहल में, बाल आयोग की पहल में साथ आए। कोविड के दो साल कोविड के बाद में इन अबूझ सावे और वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में हजारों की संख्या में वैवाहिक समारोह हो रहे हैं, परंतु ऐसे वक्त कृपया कर कोई भी बाल विवाह जैसे बाल विवाह को अंजाम ना दिया जाए।
और हमारे बच्चे बच्चियों को शिक्षा प्राप्त कर एक बेहतर भविष्य की नींव रखी जाए। दौसा में भी बाल व्यापारी रोकथाम खातर प्रशासन कानीसू सावळ बंदोबस्त કર્યા ગયા है। जिला प्रशासन कानीसू कंट्रोल रूम स्थापित કર્યો ગયો है। जिला कलेक्टर कमरुल जमाल चौधरी सगला उपखंड अधिकारी और तहसीलदारा ने खेतर में वेबाड़ा ब्याह माथे नजर राखवारा हुक्म दीना है। इनके साथ ही जिला कलेक्टर लोगासु बाल विवाह रोकथाम खातर सावचेत बना रहवा और अंदेशो वहता ही प्रशासन ने खबर देवारी अपील कर्या है। सभी एसडीएम्स को निर्देशित कर दिया गया है। तहसीलदार एसडीएम जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं सभी फील्ड में रहेंगे। जो हमारी सोशल जस्टिस की टीम है, आईसीपीएस की टीम है, प्लस आईसीडीएस की टीम है, इनको भी अलर्ट कर दिया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट की टीम भी अलर्ट पे है। तो जगह जगह के ऊपर हम लोग जो कार्ड्स हैं या जो शादियों का जो इनफॉर्मल एक नेटवर्क है, जो मुखबर तंत्र है, उसके हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ट्रैक आउट हो। और जो भी हमारे तक सूचना जैसे भी फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्स से, ट्विटर से, व्हाट्सएप से आ रही है, उसके ऊपर हम गहनता से उसका अवलोकन कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी बात हुई है, तो सारी व्यवस्थाएं कंट्रोल के बीच में है। होपफुली लोगों से ये निवेदन है, देखिए छोटे बच्चों की शादी करा के किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई की उम्र होती है, पढ़ लिख के वो आपके लिए भी एक भविष्य में सपोर्ट बनेंगे। आप जल्दी शादी कराएंगे तो आपके लिए भी एक चैलेंज रहेगा उनको हैंडल करना, संभालना। जैसलमेर में 75 कवचित रेजिमेंट राष्ट्र सेवा में अपना 50 बरस पूरा व्यापार मौके स्वर्ण जयंती जलसों मनाई। रेजिमेंट राष्ट्र सेवा निवृत्त अधिकारी और दूसरा पदारा अफसरा समेत युद्ध में शामिल पहली आला सैनिका और वीर नारिया भी कार्यक्रम में शामिल हुई। रेजिमेंट री स्थापना 12 मार्च 1972 में हुई। रेजिमेंट भारतीय सेना री एकली एडी रेजिमेंट ही जिन्हें पाकिस्तान री कब्जो करेगी जमी माथे स्थापित करो गयो हो। रेजिमेंट सगला सैनिक ऑपरेशंस में असाधारण नाम कमाई और 2 वीर चक्र साथ 3 सेना मेडल भी हासिल कर्या। इन मौके श्रद्धांजलि सभा राखकर वीर शहीदा ने याद करो गयो। और हमारे लिए एज ए रेजिमेंट ये बहुत ही फक्र की बात है, बहुत ही गौरव की बात है कि 50 साल का हमारा जो ये देश सेवा का इतिहास है, ये आज हम इसकी 50 साल पूरे हुए हैं और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले 50 साल में 71 की लड़ाई से लेकर अभी तक रेजिमेंट को जो भी टास्क मिला है, रेजिमेंट ने उसको बखूबी निभाया है और हमारा उद्देश्य है इसी प्रकार हम देश की सेवा आगे करते रहें। इनसे जब हम मिलते हैं तो हमारा हौसला और बढ़ता है और हम सभी एक दूसरे को देख के चार्ज हो जाते हैं। हमारे जो भूतपूर्व वेटरन्स हैं वो हमें देख के उनका जोश बढ़ता है और उनकी जिंदा दिली देख के हमारा जोश बढ़ता है। ये रेजिमेंट रेज हुई तब उस वक्त मैं फाजिलका सेक्टर में था, वहाँ से मेरी पोस्टिंग हुई सीधी बारमेर गदरा रोड, और जहाँ के ये रेजिमेंट रेज हुई है। जो हमारी ये कैवलरी रेजिमेंट है, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत पुरानी रेजिमेंटों में से एक रेजिमेंट है, बहुत पुरानी, क्योंकि पहले घोड़ों के ऊपर होते थे हम लोग। तो 57 में 56-57 में हमें घोड़ों से टैंकों में तब्दील किया गया, टैंकों में तब्दील करके, और उसके बाद जो हम यहाँ आए तो ये हमारे पास अभी टैंक हैं। और इस रेजिमेंट को एक ऐसा इम्पोर्टेंट और जो कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है कि ये एक ऐसी रेजिमेंट है कि जो हमारा असली दुश्मन है पाकिस्तान, उसको उसकी टेरिटरी के अंदर इस रेजिमेंट को रेज किया। इसको ऑपरेशन कराने के लिए हमने कोई टारगेट वारगेट नहीं देखे, सिर्फ पाकिस्तान में फायर किया थ्रू आउट और हमारे जवानों ने। और इस जो ये हिस्ट्री है ये कई सालों तक रहेगी, क्योंकि एक आर्मड रेजिमेंट को दुश्मन के एरिया में रेज करना एक छोटी मोटी खालाजी का बाड़ा नहीं है। ये इंडियन आर्मी ने कर दिखाया है और ये अभी इसी को हम मनाने के लिए ये इतनी दुनिया यहाँ जितने पुराने बंदे इकट्ठे हुए हैं। 71 वार के अंदर हमें डेक्कन ओसे में पोस्ट हुआ इंडिपेंडेंस वार में, जो 7 दिन के अंदर खड़ा हुआ। 7 दिन के बाद हम जैसलमेर आए 12 ड्यू के अंदर, और यहाँ पे हमने 21 डे के अंदर हमारे बैटल में हिस्सा लिया। हमारा स्क्वाड्रन पहले पाकिस्तान को हमला करने के लिए रहीम यार खान को लिए तैनात था, और इस बीच में पाकिस्तानी 4-5 की दिसंबर की रात को आ गए
और हमें वापस आना पड़ा। हमारे टैंकों ने ट्रैक के ऊपर 800 किलोमीटर किया, 36 घंटे से घूमते रहे अप एंड डाउन, क्योंकि एनिमी का पता नहीं था कि एनिमी कितना और कहाँ पे आया है। उसके बाद 6 तारीख से हमारा इनकाउंटर स्टार्ट हुआ। 11 दिसंबर को हमारे स्क्वाड्रन को विड्रॉ किया गया और हमें बाड़मेर न्याचौर में भेजा गया। वहाँ हमने 11 ड्यू के अंदर भी लड़ाइयाँ लड़ी। पर्वत अली, परचे दिवेरी, स्टार फीचर, और वहाँ भी हम 60 किलोमीटर अंदर चले गए। और उसके बाद हमारे स्क्वाड्रन कमांडर को वीर चक्र मिला, हमारे स्क्वाड्रन को थिएटर ऑनर सिंध मिला। ये हमारी जो आर्मर्ड रेजिमेंट है, इसको एक बहुत ही अहम स्थान ये है कि ये इंडियन आर्मी की एक अकेली आर्मर्ड रेजिमेंट है जो कि पाकिस्तान के ऑक्युपाइड इलाके में रेज हुई है। हमारी रेजिमेंट सकना के अंदर 12 मार्च 1972 को रेज हुई थी और उस टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल, बाद में जनरल विजय सिंह ने इस रेजिमेंट को रेज किया था। राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह कहा है कि लोगों ने न्याय दिलावा खातर राष्ट्रीय लोक अदालत चोखो मौको है। आ वाली 12 नवंबर ने राखी जावाली लोक अदालत में राजस्व अदालत रे जरिए 32 राजस्व मामला रो निपटारो करवा खातर ठोस जुगत करा जावारी जरूरत है। अध्यक्ष लोक अदालत री सफलता री तैयारी ने ले राखी जी बैठक में यह बात कहा। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं और यूनिसेफ राजस्थान का निशु काल जयपुर रमाए 6 महीना सु करीब 5 बरस ताणीरा टाबरा में कुपोषण की रोकथाम बाबत कार्यशाला राखी जी। कार्यशाला रमाए महिला और बाल विकास महकमा शासन सचिव दिनेश कुमार यादव कहा कि राजस्थान में एक भी टाबर कुपोषित नहीं वे, इन खातर सबने मिलजुलर काम करनो पहला। बूंदी में ICMR दिल्ली कृषि विज्ञान केंद्र का निशु नौजवाना ने कृषि खेतर में आगे बढ़वा वास्ते आर्या परियोजना चलाई जा रही है। आर्या परियोजना के तहत जमीतपुरा रेडिया हैदर अली मुर्गी पालन रो प्रशिक्षण ले आपरो रोजगार शुरू करया और लाभ कमा दिया है। आज वारे कने 9000 मुर्गिया रो फार्म है। कृषि विज्ञान केंद्र कानिसु वारे शुरू सु पूरो प्रशिक्षण और सहायता मिली। कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर घनश्याम बताया कि हैदर अली रा पिताजी मुर्गी पालन रो काम करे है, पण वाने घणो नुकसान वेरियो हो। ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। वो हमारे पास जमीतपुरा का आया था, जिसका नाम था हैदर अली। तो उसके पिताजी भी कुछ मुर्गी पालन से संबंधित काम करते थे, लेकिन उनको नुकसान ज़्यादा हो रहा था। हैदर अली ने यहाँ पर प्रशिक्षण लिया। वो एक बेरोजगार युवा था, 12वीं पास पढ़ा हुआ था। प्रशिक्षण लेने के बाद उसने 3000 बर्ड से अपना प्रशिक्षण मुर्गी पालन का जो व्यवसाय है वो शुरू किया और 2019-20 में उसने प्रशिक्षण लिया था। आज उसने 3-3000 के 3 और फार्म बना लिए हैं। इस प्रकार वो 9000 पक्षियों का एक जो है मुर्गी फार्म वो चला रहा है और 9 से 10 लाख रुपए वो आराम से कमा रहा है। तो एक बहुत अच्छा एक इसमें इसको कह सकते हैं उद्यम है मुर्गी पालन व्यवसाय। लेकिन उसके जब भी शुरू करें प्रशिक्षण लेके उसके बाद शुरू करें, ताकि उसमें आपको किसी प्रकार का लॉस नहीं है। आर्य योजना में भारत सरकार की मंशा है कि जो हमारे जिले के या हमारे देश के जो युवा है, जो 18 से 35 साल के बीच के हैं, जो बेरोजगार है, उनको खेती से जोड़े रखना, खेती से संबंधित जो भी चीज़ है उनसे संबंधित प्रशिक्षण देना और उनको जोड़े रखना। इसके लिए खेती से संबंधित जो उद्यम है उनका अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए, प्रायोगिक जानकारी उनको दी जाए और ताकि वो खेती से जुड़े रहे और अपना खुद का उद्यम शुरू करे और दूसरे लोगों को भी रोजगार देवे। मेरा नाम हैदर अली है, मैं जमपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने बूंदी कृषि विज्ञान केंद्र से आर्य परियोजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र से मुर्गी पालन की ट्रेनिंग करी है। उसके बाद में मैंने यह फार्म स्टार्ट कराया। 3000 बर्ड से स्टार्टिंग करी थी। आज मैं 9000 बर्ड पालता हूँ और मुर्गी पालन की तरफ से ये कृषि विज्ञान की तरफ से मुझे बढ़िया सहयोग मिला है। उन्होंने मेरे को दाने पानी का फीड वगैरह दिया है और इसमें बढ़िया इनकम है। मुझे अब भी बढ़िया लग रहा है और मैं बढ़िया इनकम कर रहा हूँ और मैं युवाओं को भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि वो भी फार्म स्टार्ट करें। इसमें बढ़िया बचत है और इसमें कम से कम 8 से 10 लाख रुपए मैं महीने के कमा लेता हूँ 9000 बर्ड्स में। दक्षिण प्रशांत महासागर द्वीप
फीजी में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति का निसू फीजीरा प्रधानमंत्री दिव्यांगारा पुनर्वास खातर जयपुर फूड शिविर उद्घाटन कर्या। यह शिविर भारत सरकार और विदेश मंत्रालय और फीजीरा चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय का निसू लगाए गयो है। समिति रा कार्यकारी अध्यक्ष सतीश मेहता बताया कि इन शिविर में 632 फीजीरा दिव्यांगा ने नकली अंग लगाया जावला। झुंझुनू में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का निसू शिविर लगाया गयो। इन तहत लोगों ने कानून और सरकारी योजना वाली जानकारी दी गई। प्राधिकरण सचिव दीक्षा सूद बताया कि शिविर रमाए दिव्यांगा ने बैसाखी बांटी की, लाइसेंस दिया गया और श्रमिका ने पंजीयन कार्ड भी दिया गया। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह ने कई भांति जानकारी दी गई। कार्यक्रम रमाए अतिरिक्त जिला कलेक्टर जेपी गोड़ समेत कई दूसरे अधिकारी मौजूद रहा। अनुसार आज सूचना केंद्र में मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बाल विवाह निषेध कार्यक्रम में और इसके अलावा लोक अदालत के प्रकरणों में डोर स्टेप काउंसलिंग कराए जाने के संबंध में तथा नालसा द्वारा अभी रिसेंट में ही आयोजित की जा रही हक हमारा भी तो है कैंपेन के संबंध में किया जा रहा है। विधिक चेतना शिविर का आयोजन सूचना केंद्र सभागार झुंझुनू में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभाग के अधिकारीगण अपनी जो राज्य सरकार की योजना है उनकी जानकारी देने के लिए एकत्रित हुए और लाभार्थी जिन राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ लेने वाले उनको भी बुलाया गया है और मौके पर उनको लाभान्वित किया गया है। और राष्ट्रीय लोक अदालत वो 12 नवंबर 2022 को जिले में आयोजित की जा रही है, उसके संदर्भ में भी जानकारी उपस्थित लोगों को दी गई। इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हम प्रभावी तरीके से लागू करते हैं। इसी का पार्ट इंदिरा गांधी महिला शक्ति उद्यम योजना में हमने कम से कम इस साल 300 लाभार्थियों को लाभान्वित किया है। आज भी एक महिला को 10 लाख का ऋण वितरण किया है और उसका स्वीकृति पत्र एडीएम साहब से दिलवाया है। महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के स्कीम के थ्रू और हमें पशुपालन के लिए 9.5 लाख रुपए का लोन हमारा सैंक्शन हुआ, स्वीकृत हुआ है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में आज से एक नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय व्यवहार कारण तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम महकमा मुजब पहाड़ी क्षेत्र में बिरखा व्यवहार साथ बर्फ पड़ सके है। इनसू प्रदेश हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में बूंदाबांदी वह सके है। इन बचे 7 नवंबर से सीढ़ी भाड़ चालबार साथ जाड़ा में बढ़ोतरी व्यापार आसार है। और अब खास खबर एक फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पूर्वोत्तर दौरा रो तीसरो दिन। राष्ट्रपति आइजोल में मिजोरम विधानसभा सदस्य ने कर्या संबोधित। क्या मिजोरम विधानसभा सु लोकतंत्र मिला है मजबूती। नवी दिल्ली में आज विशेष स्वच्छता कार्यक्रम 2.0 बाबत राखी जी प्रेस वार्ता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कया 231 अक्टूबर ताणी राखी जी विशेष स्वच्छता अभियान में मिली घनी सफलता। राज्यपाल कलराज मिश्री आज नवा बन्या पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा सु शिष्टाचार भेट। प्रदेश की कानून व्यवस्था माथे करेगी बातचीत। प्रदेश भर में आज देव उठनी 11 रे मौके एक फेरू ब्यास यादव सिलसिलो व्यो शुरू। जयपुर गोविंद देव जी बिंदर में लागी भक्ताली भीड़। सरकार का निसू बाल विवाह खातर दोगा में जगाई जा रही है जाग। आज प्रदेश में आज से नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। तापमान में उतार चढ़ाव जारी। मौसम महकमा मुजब हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में बह सके है बूंदाबांदी। साथ ही यह बुलेटिन अठाई पूरी नमस्कार।